Hello students, my name is Priyanka Pathak. I am Assistant Professor at BPD University in Mass Comm Department. In this video lecture, we will study about the subject Print Media 2. BJMC second year third semester student will study Print Media 2 in this third semester. And you student have already studied print media 1 in the previous semester, first year second semester. So in second year third semester you will study about the print media 2. We have already revised the topics of print media 1 in the previous lecture. So students go through that previous revision lectures of print media. In that lectures we have discussed and revised about the news, what is news, what are hard news, soft news, and the sources of news, elements of news, the values of news, and also the lead, about the lead, what is lead and what are the different types of lead. So, in this video lecture, we will study the current syllabus topic, that is interpretative reporting, जो कि आप अपने previous print media 1 लास्ट ईयर जो आपने लास्ट सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा था, हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पढ़ चुके हैं. इंटरप्रेटेटिव रिपोर्टिंग भी हमने आपको शॉर्ट में पढ़ाई थी, बट अब हम आपको डिटेल में इस लेक्चर में इंटरप्रेटेटिव रिपोर्टिंग हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट मॉड्यूल का टॉपिक है प्रिंट मीडिया 2 का. And also this lecture of interpretive reporting is for master's student also. This video lecture is for master's first year first semester student also, because in your second module there is a topic of interpretive reporting. So this lecture is for both the bachelor's student, Bachelor of Journalism and Mass Communication, second year third semester student, and for also masters in journalism and mass communication student, MJMC first year first semester student. तो ये लेक्चर दोनों ही बैचेस के लिए, दोनों ही मास्टर्स और बैचलर्स के बैचेस के लिए एप्लीकेबल है. ये प्रिंट मीडिया 2 फर्स्ट मॉड्यूल इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग. The topic is in your second module. The topic of interpretive reporting is in your first module. For bachelor student and for master student, it is in your second module. So here we start with interpretive reporting. So in this video lecture, we will discuss about interpretive reporting, essentials of interpretive reporting of different news stories. So when there is a need for interpretive reporting, कब interpretive reporting start हुई? So before, during and soon after the First World War, the reader was satisfied with the presentation of bare facts of what transpired. Yes, so फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, उस दौरान और उसके बाद भी रीडर इसी में संतुष्ट थे, इस इंफॉर्मेशन में ही संतुष्ट थे, जो कि सिर्फ हु व्हाट व्हेन बेसिक फैक्ट्स पे ही वो डिपेंडेंट थे और वो सेटिस्फाइड थे. The reporting was concentrated mostly around at that time, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, उस दौरान और उसके बाद, the reporting was concerned mostly around who, what, when, where aspects of journalism. Yes. So यहाँ पे सिर्फ who, what, when, where को ही मोस्टली रिपोर्ट किया जाता था, and why and how पे फोकस नहीं था. With the change of time, journalists covered the why and how aspect of news reporting. Yes. So धीरे धीरे उसके बाद टाइम निकलता गया, एंड उसके बाद जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने वाई एंड हाउ एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग को कवर करना शुरू कर दिया.
and this beginning the interpretive reporting approach, और इसी why and how से interpretive reporting की शुरुआत हुई। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, उसके बाद भी जो बेसिक न्यूज़ फैक्ट्स थे, जो न्यूज़ थी वो सिर्फ जो बेसिक फैक्ट्स थे हु व्हाट व्हेन वेयर से ही अकोमोडेट होती थी। इन एलिमेंट्स इन ये एलिमेंट्स सिर्फ आपके न्यूज़ में होते थे, बट विद द चेंज ऑफ टाइम वाई एंड हाउ एस्पेक्ट्स भी जर्नलिस्ट थ्रू जर्नलिस्ट कवर होने लगे। सो दिस गोज बियॉन्ड द बेसिक फैक्ट्स ऑफ एन इवेंट और टॉपिक and provide context, analysis and possible consequences. Yes, अब उस particular इवेंट हैपनिंग के या फैक्ट्स के जो न्यूज़ के एनालिसिस शुरू हो गए, और उस पर्टिकुलर हैपनिंग का क्या कंसिक्वेंस होगा लोगों पे, उस न्यूज़ का क्या कंसिक्वेंस पड़ेगा, उस पर भी एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गए। The present day reader demands, yes, some more a treatment, in depth, and explanation, or perhaps an analysis of what he believes to be significant news. Yes, but अगर हम present time की बात करें तो अब readers सिर्फ who, what, when, where नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो एक डिटेल्ड वर्जन न्यूज़ का पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आप देखेंगे 5 कॉलम 6 कॉलम की न्यूज़ आ रही है एंड इट हैज़ टेकन अ वेरी बिग स्पेस इन द न्यूज़पेपर। सो उस पर्टिकुलर न्यूज़ में सिर्फ आपके हु व्हाट व्हेन वेयर फैक्ट्स नहीं होंगे, वाई एंड हाउ का भी एनालिसिस होगा कि ये अगर पर्टिकुलर पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, तो पॉलिसी आ गई, कब लॉन्च हुई, किस मिनिस्टर के थ्रू लॉन्च हुई, वो सारा बेसिक फैक्ट। बट वो पॉलिसी लॉन्च क्यों हुई और कैसे उस पॉलिसी के बारे में बात हुई, उसका टोटल बैकग्राउंड दिया जाएगा। यस एग्जैक्टली। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट के बीच दो नेशंस के बीच में कोई डील हुई है या कोई ट्रीटी साइन हुई है, सो बेसिक रिपोर्टिंग, वो डील इन 2 कंट्रीज के बीच में साइन हुई, ये प्राइम मिनिस्टर्स थे, प्रेसिडेंट थे, एंड ये डील साइन हुई। बट वो डील क्यों साइन हुई, उस डील में क्या क्या था, ईच एंड एवरी डिटेल इज कवर्ड एंड दैट रिपोर्टिंग इज नोन एज योर इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग। जब आप एनालिसिस दें न्यूज़ का, जब आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें, डिटेल कवरेज दें न्यूज़ की, दैट इज कॉल्ड योर इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग। नाउ डेज यू कैन सी इन द न्यूज़ टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो, जहाँ पे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो वो जो डिबेट है, वो जो डिस्कशंस हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग। उन्होंने सिर्फ न्यूज़ बुलेटिन दे दिया, ये चीज़ यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ हुई, दैट इज सिंपल न्यूज़। बट वो हुआ, उसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा, वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बहुत ही निंदनीय बात है। इन सब के ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, वो जो डिबेट्स होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरप्रेटिव न्यूज़। लाइक अभी रिसेंटली एक जर्नलिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई उसकी बेटी के सामने। पर्टिकुलर जर्नलिस्ट की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस जगह पे उसकी बेटी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई, दैट इज अ सिंपल रिपोर्टिंग। बट उसकी हत्या क्यों की गई, और उसकी जो उसका जो मर्डर किया गया वो क्यों किया गया, और ऐसे अगर जर्नलिस्ट के मर्डर्स होते रहेंगे तो उसका क्या कंसिक्वेंसेस पड़ेगा, और जो फेलो जर्नलिस्ट थे उन्होंने स्टैंड लिया नहीं लिया, उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो दीज आर द एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन दैट आर कवर्ड इन द न्यूज़, एंड दैट इज द इन इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग। जब आप इस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट की हत्या पे, जब आप टेलीविजन चैनल्स पे डिबेट डिस्कशंस देखेंगे, तो द डिबेट एंड डिस्कशंस आर अ पार्ट ऑफ इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग। और न्यूज़पेपर पे अगर आप डिटेल्ड न्यूज़ कवरेज देखेंगे उसकी, कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, फेलो जर्नलिस्ट का क्या कहना है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का, मिनिस्टर्स का, उन्होंने क्या अपने स्टेटमेंट्स दिए, तो उन स्टेटमेंट्स को कवर, एक्सपर्टीज़ के स्टेटमेंट्स को कवर करके आप अपनी अगर न्यूज़ कंपाइल करोगे, तो दैट विल बी अ इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग, एंड दैट विल बी अ इंटरप्रेटिव report. And nowadays the readers, the people want to read and listen a detailed explanation, in-depth explanation, in-depth analysis, in-depth coverage of a particular news story. So interpretive reporting means a kind of reporting in which reporter find out the detail of the event. Yes,
It is done normally after the breaking news has gone on air and people are waiting for other details of the same news item. Like कोई हैपनिंग हुई, कोई न्यूज़ ब्रेक हुई, ओके, सो न्यूज़पेपर तो उसे ऑब्वियसली नेक्स्ट डे कवर करेगा. बट अगर वो रात में वो न्यूज़ हैपनिंग हुई है रात के 8 साढ़े 8 बजे और टेलीविजन पे न्यूज़ ब्रेक हुई, तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर उसे कवरेज देगा, बट बहुत छोटी कवरेज देगा, बहुत लिमिटेड कवरेज देगा, क्योंकि उसके एक्चुअली में उसके पास इंफॉर्मेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम है. और क्योंकि वो रात के 8 बजे ब्रेक हुई है और न्यूज़पेपर को पब्लिश होने में जाना है, न्यूज़पेपर की डेडलाइन है, उसको पब्लिश होने में, प्रिंट होने में टाइम लगता है, तो न्यूज़पेपर को पब्लिश होने में जाना है, तो जो न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में जो रिपोर्टर्स या एडिटर्स हैं, वो उस पर्टिकुलर न्यूज़ को बहुत छोटे से स्पेस में बहुत छोटी कवरेज देंगे. बट वो न्यूज़ छोटे कवरेज नेक्स्ट डे आ जाएगी, बट उसके नेक्स्ट डे उस सेम न्यूज़ का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा विद मोर डिटेल्स, विद मोर कोट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, और उसका एक डिटेल कवरेज होगा जो कि आपका न्यूज़पेपर में उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जाएगा. सेम गोज फॉर द टेलीविजन चैनल्स कि अगर कोई न्यूज़ ब्रेक हुई, उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, वो अपनी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ. लेकिन वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बाद जो लिसनर जो व्यूवर्स होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि उन्हें और जानना है और जानना है. सो उस पर्टिकुलर न्यूज़ स्टोरी का थोड़े टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे भी टेलीविजन चैनल में एक डिटेल कवरेज आती है. Yes, people want to read a detailed coverage of the news, and the detailed coverage and the in-depth reporting of the news is called interpretative reporting. Thus, interpretative reporting is not merely the reporting of facts of any event, but it is more about the reasons and purpose of the happening, the causes of accident, the after effects of natural calamities, and the future prospects of the ongoing talks between two leaders as well. Yes, तो बेसिक रिपोर्टिंग सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करना, बट इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग उसकी उस पर्टिकुलर हैपनिंग या उस पर्टिकुलर इवेंट के रीजंस एंड पर्पस को जानना. लाइक द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, नेशनल हाईवे या आगरा एक्सप्रेसवे में अगर एक्सीडेंट हो गया, सिंपल एक एक्सीडेंट हुआ, आपने रिपोर्ट कर दिया फला 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 का इस दिन इस समय इस उम्र के व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ. बट इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग इज एक्सीडेंट तो हुआ, बट उसका कॉज क्या था, और जो इतने फिर उसके बाद और डिटेल देना कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्चुअल में एक्सीडेंट्स होने का कारण क्या है, क्या रीज़न है कि आगरा एक्सप्रेसवे या हाईवेज पे इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसका रीज़न और उसके पर्पस को भी फाइंड आउट करना, दैट इज इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग. जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी, एक अर्थक्वेक आया, ड्राउट आया, फ्लड आया, तो वो तो आ गया, आपने रिपोर्ट कर दिया, बट उस अर्थक्वेक के बाद या फिर उस नेचुरल क्लैमिटी डिजास्टर के बाद, फ्लड के बाद, ड्राउट के बाद के क्या कंसिक्वेंसेस हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, उसको भी रिपोर्ट करना, ये इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्राउट हुआ, उस साल फसल खराब हुई, अब वो फसल नहीं हुई, ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, आपने रिपोर्ट कर दिया सूखा पड़ गया और फसल नहीं हो पाई, लेकिन अब वो फसल नहीं हो पाई, सूखा पड़ गया, उससे जो किसान है, फार्मर्स हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या अनाज महंगा होगा. सो ये सारी चीज़ों को डिटेल में रिपोर्ट करना, दैट इज योर इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग. इन द प्रेजेंट एज ऑफ मीडिया एक्सप्लोजन, no news channel is expected without interpretive reporting and discussions. And news commentaries are heard and watched with eagerness and interest. आप सब न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप न्यूज़पेपर को ऑब्जर्व करिए, पढ़िए, एनालाइज करिए, उसमें डिटेल कवरेज देखिएगा न्यूज़ की. लाइक जब बजट आता है तो एक डिटेल कवरेज होती है, अब इस बजट का इम्पैक्ट आम जनता पे क्या पड़ेगा, फिर आप देखते हैं नेक्स्ट डे आम जनता की बाइट्स और एक्सपर्ट्स की राय, एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट्स, डिफरेंट अपोजिशन के स्टेटमेंट्स आते हैं. सो दैट कवरेज इज नोन एज योर इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग. और आप टेलीविजन चैनल्स में भी देखते हैं, कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी इंसिडेंस हो जाता है, वो इंसिडेंस तो रिपोर्ट होता है, उसके बाद आप देखते हैं कितने उस पर डिबेट्स हो रहे हैं, कितने डिस्कशंस हो रहे हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग.
So now different authors give different views in regards to your interpretive reporting. According to Lester Markle, editor, the Sunday New York Times, he said about interpretive reporting, it is reporting news depth and with care. News refreshed with background material to make it comprehensive. That means including or detailing with all nearly all elements और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग एंड मीनिंगफुल यस तो उनके लेस्टर मार्कल के अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्टिंग है इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग ये इन डेप्थ रिपोर्टिंग है विथ केयर और न्यूज़ जिसको रिफ्रेश करना थ्रू बैकग्राउंड मटेरियल और न्यूज़ की एक डिटेल्ड कवरेज देना जो कि मीनिंगफुल भी हो लेस्टर मार्कल ऑल्सो डिफाइन इट एज objective judgment based on background knowledge of a situation or appraisal of an event which are essential part of news yes तो इनके according yes ये detailed explanation है why and how है but आपको objective रखना है अपनी news आपको अपने personal opinion अपने personal जो आपके judgment है वो नहीं add करना है आपको objective judgment देना है जो कि background knowledge और जो facts हैं present facts हैं और background facts है background knowledge है उसके बेसिस पे होना चाहिए या एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बेसिस पे या फिर एक्सपर्ट्स के कमेंट और स्टेटमेंट के बेसिस पे होना चाहिए रॉबर्ट बोलोर्फ एग्जीक्यूटिव एडिटर द वॉल स्ट्रीट जर्नल सेज it is about telling the reader everything he needs to know about a given development and all the essential facts in a way that brings the story to the reader's environment yes so इनके अकॉर्डिंग हमें रीडर को हर एक चीज़ बतानी चाहिए जिसका जानना उसके लिए ज़रूरी है वो डेवलपमेंट्स के बारे में हो या किसी भी अदर फैक्ट्स के किसी भी अदर रिलेटेड फैक्ट टू रिलेटेड फैक्ट्स हो जो कि रीडर का जानना ज़रूरी है और सोसाइटी का जानना ज़रूरी है सिमिलरली एज पर कैटलिच एडिटर द न्यूयॉर्क टाइम्स it is giving the reader public accurate information as fully as the importance of any story dictates yes इनके according public को accurate information ज़्यादा से ज़्यादा देनी है जो कि बहुत important हो based on the definitions interpretive reporting is more than presentation of bare facts but reporting news with background material to make it comprehensive and meaningful for the audience yes so interpretive reporting सिर्फ फैक्ट्स को देना ही नहीं सिर्फ जो बेसिक फैक्ट्स है हु व्हाट व्हेन वेयर को ही प्रेजेंट करना नहीं बट जो उस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है मीनिंगफुल वो भी ऑडियंस को प्रोवाइड करना ज़रूरी है बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन एनी कंट्री द पीपल have a right to know what is going on in their own nation. It puts the facts in perspective and tells the reader about why and how aspect of news by explaining the fact. Yes, so tell the interpretive reporting tell the why and how aspect of news by explaining the facts. Interpretative reporting is done by giving factual background. Yes, it is correct. फैक्चुअल बैकग्राउंड को प्रेजेंटेशन होता है इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में आई विटनेस के अकाउंट को भी प्रेजेंट किया जाता है साइड बार्स लोकलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स सो इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है हर डिफरेंट साइड्स को प्रेजेंट किया जाता है It mentions causes, motive, significance, analysis, comparison, and forecast. Interpretive reporting should base on facts. Opinion has no place in it. Yes, आपके पर्सनल ओपिनियन की कोई जगह नहीं है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट अगर आप कोई एनालिसिस कर भी रहे हैं या कोई एक्सप्लेनेशन दे भी रहे हैं सो इट शुड बी टोटली बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड मटीरियल एंड द करेंट फैक्ट्स और द previous facts. It should not include baseless comment and bias. Yes, it should be logical. It should not be baseless or bias. Interpretive reporting is needed for generally fine topics like trade, commerce, finance, stock market, international relations, and conflict.
difficult to understand. Internet also gives a lot of complex information and unspotted opinion. Now you can see this news. Kashmir is now union territory. अब कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी, ये आपकी एक डिटेल्ड कवरेज टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है. दिस इज अ इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग. इंडियाज नॉर्थ पोल शिफ्ट टू सेंटर. इसमें बहुत सारी डिटेलिंग की गई हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं. JNK to lose special status, center to directly rule लद्दाख. अब देखिए बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इस पर्टिकुलर न्यूज़ का. कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी. सिंपल उन्होंने न्यूज़ सिंपल बेसिक फैक्ट्स होते हैं. गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, ये आर्टिकल हटाया, कश्मीर इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी. सिंपल. और ये डिसीजन अब आया. लेकिन इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिटेल्ड कवरेज की है, इन डेप्थ कवरेज की, एनालिसिस की है. सो दिस स्टोरी इज योर इंटरप्रेटिव story. Interpretive reporting is done in this story. Another example of interpretive reporting, interpretive news. India's avenging force. अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ की भी बहुत एयर स्ट्राइक डीप इनसाइड पाक फर्स्ट सिंस 71 वॉर. सिंपल स्ट्राइक की सिंपल स्ट्राइक की इंफॉर्मेशन हो सकती थी, बट दिस इज a detailed coverage and interpretive reporting is done in this particular news story, and this is a interpretive news report. Interpretative news report. So why we need interpretive report of the same event of which has already gone air? Yes, क्योंकि वो information break होती है या फिर कोई event हुआ है, कोई happening हुई है, सो एकदम से न्यूज़ चैनल्स उसको दिखाने लगते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. और न्यूज़पेपर को भी क्योंकि अपनी डेडलाइन से पहले न्यूज़ को प्रिंट करना होता है, तो वो भी एक बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में प्रोवाइड करते थे जितनी उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है. जैसे ही ग्रेजुअली उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और फैक्ट्स मिलते हैं और डिटेल्स मिलती है, जैसे ही उस पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग में और ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही होती है, मिल रही होती है, वैसे उसके बाद ही टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स अपने नेक्स्ट बुलेटिन में या नेक्स्ट डे बुलेटिन में या नेक्स्ट आवर की बुलेटिन में उसको एक अच्छा कवरेज देते हैं. एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर अपने नेक्स्ट डे के एडिशन में उसको एक डिटेल कवरेज देती है, एक इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग फॉर्म में प्रेजेंट करती है. So now what are the essentials of interpretative reporting? So first is your factual background, second is your eyewitness, and third is your interview. So these are the essentials of interpretive reporting. These points must be in your interpretive reporting. Now what is factual background? Every interpretive report takes a start with the factual background of the event, without which the reporter will not be called a complete, comprehensive and compact report and will leave a feeling of vagueness. Yes, so आप को अपने रिपोर्ट में फैक्चुअल बैकग्राउंड देना ज़रूरी है. लाइक अभी जो आपने हम लोग ने अभी एग्जांपल्स देखे थे, कश्मीर इज़ नाउ यूनियन टेरिटरी. अब जो प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें हुई वो सब आपने अपने रिपोर्ट में दी, बट आपको उस पर्टिकुलर स्टोरी का जो सब्जेक्ट है कश्मीर इज़ नाउ यूनियन टेरिटरी, उससे रिलेटेड आपको फैक्चुअल बैकग्राउंड देना पड़ेगा. कश्मीर का क्या फैक्चुअल बैकग्राउंड था, कश्मीर का क्या स्टेटस था इससे पहले, कश्मीर में 370 था. सो ये फैक्चुअल बैकग्राउंड आपको न्यूज़ स्टोरी में प्रोवाइड करना पड़ेगा. लेट्स जस्ट सी दैट पर्टिकुलर न्यूज़. See, in historic move within 100 days of Modi's government bifurcates state into two union territories, defunds Article 370 and scrap 35A. अब गवर्नमेंट ने ये स्क्रैप किया 35A एंड आर्टिकल डिफेंस आर्टिकल 370. अब इसका बैकग्राउंड देना कि वो आर्टिकल 70 कब लगा था, क्या था, या 35A क्या है. तो दीज आर द फैक्चुअल बैकग्राउंड जो कि आपको प्रेजेंट न्यूज़ में प्रोवाइड करना ज़रूरी है.
It is therefore becomes necessary to make the factual background a part of interpretative report. Yes, factual background is important part of the interpretive report. The factual background of an event is the same that has been gone on air or published earlier in a result of actual reporting. Yes, so अगर उस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड पहले भी रिपोर्टिंग हो चुकी है तो वो एक तरीके से बैकग्राउंड का काम करेगा आपकी प्रेजेंट टाइम की रिपोर्टिंग के लिए. As it has already been discussed that in factual reporting the answer to 4 W's, what, when, where, who, what, when, where is most important. तो आपकी जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग है उसमें who, what, when, where जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो लाइक फैक्चुअल बैकग्राउंड वो हुआ जैसे कि आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में प्रेजेंट पढ़ रहे हो और उस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड अगर कुछ पहले न्यूज़ पब्लिश हो चुकी है या पहले कोई मुद्दे उठे हैं तो दैट विल बी द फैक्चुअल बैकग्राउंड फॉर दैट करेंट न्यूज़. Now we'll talk about eyewitness account. Eyewitness means the people, the person who have seen that particular happening incidents in front of their eyes. The account of eyewitness is very important to be recorded for an interpretative report. Amongst eyewitnesses are the direct effectees of the incidents. Yes, सो आई विटनेस जो होते हैं जो जिन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा होता है उनमें बहुत सारे आई विटनेस भी होते हैं. लाइक एक्सीडेंट, जिन सपोज किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है वो उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के आई विटनेस है, उनके साथ जो लोग हैं वो उसके आई विटनेस हैं. फायर स्टोरीज, अर्थक्वेक, फ्लड, सो जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो आई विटनेस है तो उनका अकाउंट लेना भी इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है. एंड वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाता है. द पीपल थॉट the people though were not the effectees but were present at the spot when the incident occurred. Yes, हो सकता है बहुत से लोगों को उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हैपनिंग का इफेक्ट उन पे ना पड़ा हो लेकिन उन्होंने वो चीज़ होते हुए देखी है तो वो भी आपके लिए आई विटनेस का काम कर सकते हैं. The expression of eyewitness must be recorded in with their names and identification. Yes, so अगर आप अपने आई विटनेसेस का आप आई विटनेस के जो भी एक्सप्रेशन हैं उसको रिकॉर्ड उनके नेम्स और उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ करते हैं रिपोर्टर्स. Now come to interview, that is the very main element of the interpretive reporting, like interviews of authorities, interviews of dignitaries जो उस particular न्यूज़ स्टोरी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं उनके इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करना और उनके स्टेटमेंट्स और उनके बातों को कोट करके उनके स्टेटमेंट्स को, उनके कोट्स को न्यूज़ में प्रोवाइड करना, प्रेजेंट करना. इंटरव्यूज़ ऑफ कंसर्न पीपल सच एज पुलिस ऑफिशियल, फायर ब्रिगेड, सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा are important to be recorded to win the confidence of the listener and to add credibility to the report. Yes, so interviews में जब आप mention करते हो, आप जब attribute करते हो, आप source identify करते हो जिनसे आपने interview लिया है उसका name with designation mention करते हो तो कहीं ना कहीं जो आपकी news report है वो एक बहुत ही credible report हो जाती है, वो trustworthy report हो जाती है in front of the eyes of the reader, listener and viewers. So now interpretative reporting of different news stories. Okay, so अब here are few example कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टोरी जो है उसकी फैक्चुअल रिपोर्टिंग कैसे होती है और उसकी इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग कैसे होती है. लाइक अगर हम किसी की स्पीच को कवर कर रहे हैं, कोई डिग्निटरी है या कोई रैली है उसमें कोई स्पीच किसी की हम कवर कर रहे हैं, कोई स्पीच स्टोरी है, ठीक है, इसमें किसी पॉलिटिशियन को अपना एजेंडा शेयर करना है, एनीथिंग. सो फैक्चुअल रिपोर्टिंग कैसे रिपोर्ट होगी और इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग कैसे होगी उसका डिफरेंस है. फैक्चुअल रिपोर्टिंग में हु, वेयर, व्हाट, व्हेन. हु नेम ऑफ द स्पीकर, कौन स्पीच दे रहा है, वेयर वेन्यू कहाँ पे है मतलब कहाँ से वो स्पीच डिलीवर हो रही है, व्हाट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द स्पीच, उन्होंने अपनी स्पीच में ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी चीज़ बोली है, क्या उन्होंने कौन से पॉइंट को, कौन से सब्जेक्ट को एड्रेस किया अपने स्पीच में. एंड व्हेन, टाइम ऑफ द एक्टिविटी, वो स्पीच
कब शुरू हुई और कब तक चली. That this is factual reporting. Who, what, when, where. Now come to interpretive reporting. अब speech story की interpretive reporting कैसे हो? स्पीकर प्रेजेंट पोजीशन, यस, जो स्पीकर है उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब वो प्रेजेंट कौन सी पोजीशन को बिलोंग करता है. बैकग्राउंड ऑफ द स्पीकर एंड द फंक्शन. जो स्पीकर है वो पर्सन है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसने अभी तक कितने पोजीशंस को हेल्ड किया है, क्या क्या उसने फंक्शंस, उसके क्या क्या फंक्शंस रहे हैं, उसके क्या क्या काम रहे हैं, उसने कितनी चीज़ें अचीव की हैं. तो ये आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्पीकर हो जाएगा. उसकी शायद एजुकेशन को आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे सकते हैं. मेन पॉइंट ऑफ द स्पीच, उसने अपनी स्पीच में ऐसा क्या क्या चीज़ें उसने अपने स्पीच में बोली, क्या क्या चीज़ें उसने अपने स्पीच में कही हैं जो इम्पोर्टेंट है. बैकग्राउंड ऑफ एनी पॉइंट इफ इट रिलेट्स टू समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यस. सो अगर जो वो बोल रहा है अपनी स्पीच में, वो जिस मुद्दे के बारे में बोल रहा है, जिन टॉपिक्स के बारे में बोल रहा है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है या किसी ने उस पर्टिकुलर मुद्दे पे बोला है या इनिशिएटिव लिया है, तो उस बैकग्राउंड को भी आप इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में ऐड कर सकते हो. सॉरी, पर्पस ऑफ द स्पीच. अब स्पीच का पर्पस क्या है, मतलब क्या मोटिव है उसका, उस स्पीच को देने का क्या मोटिव है, ये आप क्या कहते हैं अपने इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में ऐड कर सकते हैं. नंबर ऑफ ऑडियंस, वो जो स्पीच, वो जो डिग्नेटरी दे रहा है, स्पीकर दे रहा है, वहाँ पे ऑडियंस कितनी मौजूद है, हाउ मेनी पीपल आर देयर एट दैट इवेंट. रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल एंड ऑडियंस टू द स्पीच, कैसे वहाँ जो लोग आए हुए हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हूट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में देना. इम्पॉर्टेंट पर्सन प्रेजेंट, अब जो स्पीच दे रहा है उसके अलावा उस पर्टिकुलर इवेंट में, उस स्पीच में कौन कौन लोग मौजूद हैं अपार्ट फ्रॉम द स्पीकर, और कौन कौन उस स्पीच इवेंट में प्रेजेंट. सो ये इन सारे फैक्ट्स से को कवर करके एक इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग होती है, और इंटरप्रेटिव रिपोर्ट फाइल होती है, लिखी जाती है बाय रिपोर्टर. नाउ कम टू द डेथ स्टोरीज. अब डेथ स्टोरी में फैक्चुअल रिपोर्टिंग कैसे की जाती है और इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग कैसे की जाती है. So let's see. Now factual reporting in death stories में who, name and identification of deceased person, अगर कुछ जो मर चुका है, when, time and date, कब मरा और किस दिन मरा और कौन से टाइम, क्या टाइम था, एज ऑफ द टाइम ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ हुई तो उसकी एज क्या थी, वेयर, प्लेस ऑफ डेथ, कहाँ पे उसकी डेथ हुई, घर पे हुई, बाहर हुई, रास्ते में हुई, ठीक है. वाई, कॉज ऑफ डेथ, मतलब क्या उसके मरने का कारण क्या था, नेचुरल था, एक्सीडेंट था या सुसाइड था. ओके, सो ये डेथ स्टोरी में फैक्चुअल रिपोर्टिंग. नाउ कम टू द इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग. अब डेथ स्टोरीज में इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में किन किन एलिमेंट्स को कवर किया जाता है. डेट ऑफ बर्थ ऑफ द डिजीज, वो कब उसका जन्म हुआ. पेरेंट्स ऑफ द पर्सन, जो मरा है उसके पेरेंट्स कौन, उनके नाम, वो क्या करते थे, देयर स्टेटस इन सोसाइटी, यस. सर्वाइवल्स, उसके मरने के बाद अब कौन कौन बचा है उसके फैमिली में, उसके मरने के बाद सर्वाइवर्स कौन कौन है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके माँ बाप, वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी स्टोरी में प्रेजेंट करना. प्रीवियस रेसिडेंट्स इफ एनी नेबर्स, इस जहाँ वो रहता है प्रेजेंट, जहाँ पे उसकी डेथ हुई है उससे पहले वो कहाँ रहता था, अगर वो रहता था तो, और उसके प्रीवियस नेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, उनके प्रीवियस नेबर्स अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ बताते हैं उस आदमी के बारे में, उस पर्सन के बारे में जो कि मरा है, वो. एजुकेशन ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की क्या एजुकेशन है, किस इंस्टीट्यूशन से उसने स्टडी की है और क्या क्या अचीवमेंट्स उसको मिले हैं. ऑक्यूपेशन क्या था उसका, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी डेथ हुई है वो क्या उसका ऑक्यूपेशन था. एक्चुअली बेसिकली डेथ स्टोरीज ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आर कवर्ड बाय रिपोर्टर, यस. जो इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग होती है डेथ स्टोरीज में, वो बेसिकली उन्हीं की होती है जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं, नेता, अभिनेता, स्पोर्ट्स पर्सन एंड द प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की बेसिकली होती है. एंड इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में आपने उसको ऑक्यूपेशन कवर किया, प्रेजेंट स्टेटस क्या था, मैरिड था, अनमैरिड था, क्या क्या
सोशल स्टेटस क्या था, एनीथिंग, सोशल एक्टिविटीज़ उसकी क्या क्या रही उसके मरने से पहले, अचीवमेंट्स, उसको क्या अवार्ड्स मिले थे, क्या उसने गेन किया था अभी तक अपनी लाइफ में, अगर उसकी कोई स्पेशल इंटरेस्ट था और उसकी कोई हॉबीज़ थी, जो इंसान मर चुका है उसकी, उसका किसी चीज़ में पर्टिकुलर, किसी सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उसका स्पेशल इंटरेस्ट या उसकी कोई स्पेशल, उसकी कोई हॉबीज़, स्पाउस इन्फॉर्मेशन, अगर वो मैरिड था तो उसके स्पाउस की इन्फॉर्मेशन, उनकी जो स्पाउस है वो क्या करते हैं या क्या करती हैं। गवर्नमेंट प्रोमिस टू द सर्वाइवर, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉमिस हुआ है उस पर्टिकुलर सर्वाइवर के लिए, तो मतलब जो इंसान जो जो मरा है उसका जो सर्वाइवर है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई, उन्होंने मरने वाले के जो फैमिली में जो लोग हैं, अगर गवर्नमेंट ने उनको कुछ प्रॉमिस किया है तो वो भी आप अपनी न्यूज़ में प्रोवाइड करेंगे। लाइक अगर कोई कोई आर्मी पर्सन मरता है, कोई कैप्टन मरता है, तो आप ये सारी जब इन्फॉर्मेशन देते हो तो गवर्नमेंट उनको ऑब्वियसली उनकी फैमिली को कुछ प्रॉमिस करती है कि वो उनको इतने लाख रुपए देगी, ज़मीन देगी या फिर उनके बच्चों को जॉब देगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में ऐड करेंगे। नाउ कम टू फायर्स एंड एक्सीडेंट। फैक्चुअल रिपोर्टिंग में फायर्स एंड एक्सीडेंट को कैसे कवर करते हैं, व्हाट, क्या हुआ, फायर लग गई, एक्सीडेंट हो गया, अ बिल्डिंग इज सेट ऑन फायर, ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। व्हीकल मेड एन एक्सीडेंट, ट्रेन गॉट ऑफ द रेल, प्लेन हैड अ क्रैश फायर, ओके, वेयर, कहाँ हुआ वो, प्लेस, लोकेशन, व्हेन, टाइम एंड डेट, तो इन सारी जो हैपनिंग्स हैं फायर एंड एक्सीडेंट्स की, उसका वेयर, कहाँ, प्लेस, लोकेशन, व्हेन, कब, कहाँ, कब और कौन सी डेट में, हाउ मेनी, मतलब कितने नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हुई, ये सारी आपकी फैक्चुअल रिपोर्टिंग में, डेथ और एक्सीडेंट की फैक्चुअल रिपोर्टिंग में कवर की जाती है। नाउ योर इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग। अब इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में फायर एंड एक्सीडेंट्स की जो इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग होती है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स को कवर किया जाता है। नेम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन किल्ड, यस, उनका नेम और उनकी अगर कोई आइडेंटिफिकेशन है, अगर कोई किसी कहीं वो जॉब करते हैं या कोई ऑफिशियल है। इंजर्ड, नेम एंड, कितने उस फायर उस एक्सीडेंट में कौन इंजर्ड हुआ है उसका नेम एंड आइडेंटिफिकेशन। द रीसेंट ऑफ द इवेंट, सॉरी द रीज़न ऑफ द इवेंट, अगर वो एक्सीडेंट हुआ या फायर लगी तो क्यों लगी, क्या रीज़न था। आई विटनेस अकाउंट, जितने भी आई विटनेस थे, जो भी वहाँ मौजूद थे, उनकी बाइट लेना, उनके स्टेटमेंट को न्यूज़ में देना। पुलिस इंटरव्यू, पुलिस से इंटरव्यू करना, पुलिस ने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको अपनी न्यूज़ में प्रोवाइड करना। मिनिस्टर स्टेटमेंट, मिनिस्टर्स ने क्या कहा कि अब इस एक्सीडेंट के बाद क्या उन लोगों को कॉम्पनसेशन मिलेगा, या वहाँ पे आग लग गई जो लोग मरे उनको क्या उनको क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा, मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्टर्स का क्या कहना है उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट और फायर इंसिडेंट्स में। रेस्क्यूज, जो जो लोग बचे उनके बारे में। लीगल एक्शन, अगर कोई उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट पे या फायर इंसिडेंट्स पे अगर कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट या फिर कोई भी उस पर कार्रवाई, जांच शुरू हो गई है, तो वो भी अपनी न्यूज़ में प्रोवाइड कर। नाउ कम टू क्राइम स्टोरीज। अब क्राइम स्टोरीज में फैक्चुअल रिपोर्टिंग कैसे होती है और इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग कैसे होती है। क्राइम रिपोर्टिंग में व्हाट नेचर ऑफ द क्राइम, क्या हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, डॉबरी केस है या सुसाइड है, हु द ड्योर एंड द विक्टिम, हाउ द वे द क्राइम इज कैरिड आउट, कैसे वो क्राइम को किया गया। बैंक, अगर रॉबरी हुई तो कैसे बैंक लूटा गया, अगर मर्डर हुआ तो कैसे मर्डर किया गया। हाउ मच लॉस एस्टिमेटेड, मतलब कितना, अगर किसी के घर में चोरी हो गई तो कितने लाख की हुई, या बैंक में हो गया या डाका पड़ गया, रॉबरी हो गई तो कितना लॉस हुआ, तो उसका एस्टिमेट करना। वाई, द रीज़न ऑफ द क्राइम, मोटिव क्या था क्राइम का, अगर उसने मर्डर किया तो उसका क्या मोटिव था, उसने रेप किया तो उसका क्या मोटिव था। मोटिव दैट मीन्स कि द रीज़न ऑफ द क्राइम एंड मोटिव, उसकी पर्पस क्या थी, एनिमिटी या मेंटल डिसऑर्डर था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उसको गरीबी थी, उसको ज़रूरत थी, या उसकी एक हैबिट हो गई है क्राइम करने की। सो दीज आर कवर्ड इन factual reporting of crime stories. Now, interpretative reporting of crime stories. What are the details covered in your इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम स्टोरी। बैकग्राउंड ऑफ द क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल है या क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है उसका कोई बैकग्राउंड है तो वो आप प्रोवाइड करोगे। पुलिस स्टेशन का जो स्टेटमेंट है, पुलिस ऑफिशियल का जो स्टेटमेंट है वो। सोशल रिएक्शन,
उस पर्टिकुलर क्राइम पे लोगों का क्या रिएक्शन है। लोगों ने अगर कोई रेप हुआ है किसी का, या बैंक में रॉबरी हो गई है, या किसी के घर में चोरी हो गई, किसी बहुत बड़ी चोरी हो गई, तो उसमें लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, लोगों का क्या सोचना है, लोगों का क्या कहना है, लोग कैसा फील कर रहे हैं, वो पीपल्स इंटरव्यू, लोगों का जो आपने जो रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया उनके क्या व्यूज़ हैं, ओपिनियन है, वो भी आप इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में प्रेजेंट करेंगे क्राइम की। द इंटरव्यू ऑफ अक्यूज रिलेटिव, जो अक्यूज है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है उस पर्टिकुलर क्राइम, हम अक्यूज इसलिए बोले क्योंकि अभी उसका इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। तो जो अक्यूज्ड है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, उसके जो घर वाले हैं उनका क्या कहना है, वो भी आप इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में प्रोवाइड करेंगे। द इंटरव्यू ऑफ विक्टिम्स रिलेटेड, जिसके साथ वो क्राइम हुआ है, सपोज रेप हुआ है, या उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो गई है, या उसको जलाने की कोशिश की गई है, तो जो विक्टिम है जिसके साथ वो हादसा हुआ है, उनके घर वालों का क्या कहना है, क्या उनका ओपिनियन है, क्या उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें भी अपनी रिपोर्ट में देना, ये इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में आएगा। लीगल एक्शन अगर कोई लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन, क्लूज अगर पुलिस को मिले, एविडेंस, या कोई अरेस्ट हुआ है, या उस पर्टिकुलर क्राइम से कोई भी फॉलोअप है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में प्रेजेंट की जाए। नाउ कम टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपका फैक्चुअल रिपोर्टिंग में सिंपल व्हाट द नेम ऑफ द गेम, कौन सा गेम टूर्नामेंट चल रहा है, कौन सा गेम का टूर्नामेंट चल रहा है, कौन सी सीरीज चल रही है, उसका नाम, नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, व्हेन, टाइम एंड डेट, कहाँ पे हो रहा है, स्टेडियम, टीम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, दैट इज फैक्चुअल रिपोर्टिंग। अब इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट, आपको इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में आप उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की हिस्ट्री दे रहे हो, लाइक सब SAF गेम्स, ओलंपिक्स की, वर्ल्ड कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री भी प्रोवाइड कर रहे हो। प्रीवियस विनर कौन कौन से रहे, कौन सी कंट्री के रहे हैं, कौन कैप्टन था, किसने और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड होल्डर्स, प्रीवियसली किसने रिकॉर्ड बनाया था और प्रेजेंट टाइम में किसने रिकॉर्ड बनाया है। करंट टीम विद प्लेयर्स इंट्रोडक्शन, जो करंट टीम है उसके प्लेयर्स के बारे में, उनके प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन। सो दीज आर कवर्ड इन इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग. For some other examples of interpretative reporting are the elections of 5 state assemblies were held in July. The interpretive reporter would not only convey the news of the victory of Congress party in 3 states, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जो वो विक्ट्री है, सिर्फ उन्हीं को ही नहीं इन्फॉर्म करेगा, बट वो पूरा एनालिसिस देगा इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग में कि क्या रीजंस रहे, कैसे कांग्रेस ने कैंपेनिंग की, क्या रीजंस से जो कांग्रेस 3 स्टेट से जीत गई, यस, बट एनालाइजेस द रीजंस बिहाइंड इट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द consequences ऑफ इट्स विक्ट्री फॉर द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस एंड अदर पार्टीज. सो उनके जीतने के पीछे के रीजंस को भी एनालाइज करेगा और अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेगा. So see, some of the stories of interpretive reporting are Pathankot operation still on, टोल मॉन्च 27. तो ये आपकी एक इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग है जिसमें कि उन्होंने ये आपके उसमें अलग अलग स्टोरीज को भी कवर किया है जो कि इससे रिलेटेड है. सो डिटेल्ड कवरेज है ये आपकी. हेल्थ इमरजेंसी इन दिल्ली, NCR as pollution hit severe plus zone. So this is the इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग जिसमें उन्होंने बैकग्राउंड और जितने भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं उस न्यूज़ के, उन सबको मेंशन किया है. So these are all the example of interpretive reporting and I hope आपको समझ में आया होंगे ये सारे examples and points. So student, this is all about the interpretive reporting, the essentials of interpretive reporting, and some examples which have given in this video lecture. I hope you all will understand the examples and also the topic interpretive reporting. So I request to both the batches of masters and bachelor student to please go through this lecture thoroughly and try to understand the topic. So in the next video lecture we will discuss about reviewing of book, films and documentaries.
So thank you class. I hope you will understand this video lecture.